Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए. परमेश्वर का we thank the Lord that He has given us this time to spend few moments in His Word. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इस समय हमें दिया है ताकि हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में व्यर्थ कर सके. It's really wonderful as people of God, as believers, that we are able to come together and meditate like this. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के जन होने के नाते, विश्वासी लोग होने के नाते इस प्रकार एकजुट होकर आकर प्रभु के वचन सुन पाए. And we fellowship not just only like this every Sunday in meditating on the Word, but there are other means of fellowship also. और हम सिर्फ संडे को इस प्रकार की संगति ही नहीं करते हैं, हमारे पास और भी अलग तरीके हैं जिसके द्वारा हम संगति करते हैं. As Pastor Manova explained, we have home groups. और जैसे पास्टर मनोवा ने बताया था कि हमारे पास होम ग्रुप्स हैं. And we have other events which we celebrate together. और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम मिलकर मनाते हैं. I'm really excited for the coming picnic. और मैं बहुत उत्साहित हूँ आने वाले उस पिकनिक के लिए. I love to spend time playing games and fellowshipping with people. मुझे ये बात अच्छी लगती है जब मैं दूसरों हमारे प्रभु के लोगों के साथ गेम्स खेलता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ. So that is another opportunity for all of us to come together, to get to know each other and have some good time in the Lord. और ये एक अच्छे समय है कि हम प्रभु के लोग एक साथ आएं और प्रभु के नाम को महिमा करें और एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिताएं. I'm pretty sure there is going to be cricket. Brother Rumi will not leave us without cricket. और मुझे पक्का यकीन है कि उस दिन हम क्रिकेट भी खेलेंगे क्योंकि भाई रूमी हमें क्रिकेट के लिए बिना छोड़ेंगे But there will नहीं. be something for each one of us. लेकिन आप सब के लिए कुछ ना कुछ होगा. So I will encourage each one of you to come for this picnic. We are celebrating or having this picnic almost after 2.5 years. और मैं इसलिए आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग जरूर इस पिकनिक में आएं क्योंकि हम लोग लगभग 2.5 साल के बाद इस प्रकार के एक पिकनिक का आयोजन कर रहे And we हैं. are going to enjoy and have a good time in the Lord. और हम सब इसमें आनंदित होंगे और अच्छे समय हमारे लिए होगा. So coming back to our study for today, we are going to talk about a very special topic. और आज की जो शिक्षा जो हम प्राप्त करने वाले हैं उसके विषय में ये भी बताऊंगा. तो आज हम एक खास एक विषय के ऊपर हम शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं. If you remember, few months back we were talking about a series, a normal Christian life. यदि आपको याद है कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के पहले हम एक साधारण मसीही जीवन इस बात के ऊपर हम शिक्षा सुन रहे थे. And one of the topic which I spoke upon in the month of April was the Christian and work. और उसमें से एक विषय जिसके ऊपर मैंने प्रचार किया था वो यही था कि एक मसीही और उनके काम. Just go back. Go back. One more. Yeah, I think this is all. So we were talking about this particular topic and this was in the month of April. और ये अप्रैल महीने में हम इस टॉपिक के ऊपर बात किए थे. So we had discussed about what a Christian and his work means. और इसके ऊपर हमने इस विषय पर बात किया था कि एक मसीही और उनका काम क्या है. And coincidentally, during that particular time, in that particular month, I was also enrolled for a course. और उस समय पर जब मैं इस प्रचार कर रहा था उस महीने पर मैं भी एक कोर्स में शामिल था. I am doing a course from ABTS, which is Asia Biblical Theological Seminary. और मैं ABTS यानी एशिया बिब्लिकल थियोलॉजिकल सेमिनरी से एक डिग्री प्राप्त कर रहा हूँ. And this seminary offers degree courses from Cornerstone University, which is in Michigan, US. और ये कॉर्नरस्टोन यूनिवर्सिटी जो कि मिशिगन में है वहाँ से ये लोग डिग्री हमें प्राप्त So I am करवाते doing a हैं. course called MRE, which is Masters in Religious Education. और मैं इस कोर्स कर रहा हूँ जिसका नाम है MRE यानी मास्टर्स इन रिलीजियस एजुकेशन. And I was really amazed as how God works, that when I had this particular topic, the Christian and work, the course which I was about to enroll in ABTS was work, vocation and ministry. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इतने अद्भुत तरीके से जब इस विषय के ऊपर जब मैं तैयार कर रहा था और प्रचार कर रहा था और उसी समय पर जो मेरे पढ़ाई जो हो रही थी उसमें भी इसी बात के ऊपर मेरा पढ़ाई था कि काम और सेवकाई को कैसे हमें देखना है. So that course was for about 3 months. We finished it in the month of July. और वो लगभग 3 महीने का जो कोर्स था वो जिसे हमने जुलाई महीने में समाप्त किया है. Having done that course, I realized what are the huge and big gaps in our understanding related to work. और जब मैंने इस कोर्स को समाप्त किया तो मुझे इस बात की जानकारी मिली है
कि कितने दूरियां हैं हमारे सोच में काम को लेकर के हमारे विश्वासी लोगों के बीच में। As a part of this particular course, I was supposed to do a research with some people. और इस कोर्स के दौरान मुझे कुछ लोगों के साथ कुछ रिसर्च करना था And I interviewed some people from our church and some people from outside the church. I interviewed them. और कुछ लोगों को मैं अपने कलीसिया से भी और कलीसिया के बाहर से भी कुछ लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू किया And we prepared a research paper and submitted to the ABTS university. और मैंने उस रिसर्च पेपर को तैयार करके मेरे यूनिवर्सिटी को समर्पित किया। It is that when I realized that there is so much about work that we don't know and we need to know. और तब मुझे पता चला कि काम के विषय में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन वो पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। So as a end result, end objective of that course, I decided that I want to do a series on work and I would want to do it with our church. और जब वो मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैंने एक निर्णय लिया है कि इस विषय के ऊपर मैं कलीसिया को सिखाऊंगा, तो ये जो शिक्षा जो आज हम आरंभ कर रहे हैं ये कुछ समय के लिए अभी जाएगा। So we discussed, Pastor Joy, Pastor Manova, myself, we discussed, I'm supposed to be taking one particular Sunday every month. और हमने हमारे कलीसिया के पासवानों के साथ बात किया तो मुझे महीने में एक संडे में प्रचार करना है। So on almost every other Sunday we'll do the regular series like we are talking from the book of 1 Thessalonians. और दूसरे संडेस में हम जैसे नॉर्मल शिक्षा ले रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके ऊपर हम बात करेंगे। But one Sunday every month, which is usually the last Sunday of the month, we'll be talking about work. लेकिन हर महीने में एक संडे, वो ज्यादातर महीने के आखिरी संडे होगा उस दिन मैं प्रचार करूंगा और काम के ऊपर प्रचार करूंगा। I'm still working out on the topics that I will be talking about, so this may go on for several months. और मैं अभी भी उन चीजों के ऊपर कार्य कर रहा हूँ तो ये बहुत महीनों तक चल सकता है। So I would encourage each one of you to come prepared, be ready, meditate on this word and understand what work means to you. तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप सब लोग तैयार होकर के आए, इन वचनों के ऊपर मनन करें और इस बात को सोचते हुए आए कि काम आपके लिए क्या महत्वपूर्ण बात रहती So है। as a starting point of this series, I want to establish a clear understanding of what is the biblical theology of work. और इस बात को आरंभ करने के वक्त मैं इस बात को आप सबको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वचन के अनुसार या वचन के ज्ञान के अनुसार काम हमारे लिए क्या है। Right, there is different understanding of work each one of us has. और हम सब के बीच में काम के विषयों को लेकर के अलग-अलग समझ है। Work means something different to each one of us. और काम शायद सब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग विषय होगा। Some people enjoy work, some people do not enjoy it. कुछ लोग काम को आनंद के साथ करते हैं, कुछ लोगों को काम में इतना आनंद नहीं होता। For some, work is a burden. और कुछ लोगों के लिए काम एक बोझ होता है। Right? But we'll try to understand what exactly is work according to the Bible. लेकिन हम आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वचन के अनुसार काम क्या है। Right? So you see, when a child turns 5, he starts going to school. हम सब जानते हैं जब एक बालक 5 साल का हो जाता है तो वो स्कूल जाना शुरू करता है। And that is it. The fun time is over. और वही है, उस बच्चे का खेल कूद का समय सब वहीं पर समाप्त हो जाता है। From that time on, he or she, they start to work. और उस समय से लेकर के वो बच्चा काम करना शुरू कर देता है। Right? And from there on, they are just busy doing something or the other which probably entails at work. और उस समय से लेकर के उसके जीवन भर वो कुछ ना कुछ करते रहता है, एक काम के रूप में करते रहता है। So there are about 24 hours in a day. और दिन में 24 घंटे हैं। And we work roughly for about 8. Some people work for 9, some people work for maybe 7, but roughly about 8 hours is a standard working time. और लगभग हम जानते हैं कि साधारण तौर पर सब लोग दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ये एक साधारण नियम है। So which means that for 1/3 portion of our life we are working. इसका मतलब हमारे जीवन के 3 में से 1 भाग हम काम में समय बिताते हैं। Right? And that is a major portion of our work. और ये हमारे जीवन के एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। Right? And that brings out a lot of questions between us, especially the Christians. और ये जो बात है हम खास करके मसीहियों के मन में एक प्रश्न को उठाता है। Right? You would have heard these questions time and again being repeated. Maybe you would have asked them yourself. और शायद आपने इस सवालों को दूसरों के मुंह से सुना होगा या शायद आपने भी इस सवाल को पूछे होंगे। Right? Something like, why does God have us to work for such a long time period? और आपने पूछा होगा कि क्यों परमेश्वर हमें इतने लंबे अवधि के लिए, इतने लंबे समय के लिए काम करने दे रहे हैं? Why do I have to do just this one particular thing over and over again? क्यों मुझे सिर्फ इस एक काम को हर दिन बार-बार करना पड़ रहा है? One very major question which I think practically everyone asks or thinks about it is, work a necessary evil which is a result of the fall? तो शायद ये एक सवाल है जो शायद आप में से भी बहुत सारे लोग
पूछे होंगे कि क्या काम इस प्रकार का एक दुष्टता है जो हम पाप करने की वजह से हमारे ऊपर आया? Uh, is it because of the sin that we are supposed to be working? क्या हमने पाप किया इसके वजह से हमें काम करना पड़ रहा है? Right? Is it wrong to work for a paycheck? क्या ये तनख्वाह पाने के लिए काम करना गलत है? What are the career paths I should choose? किस प्रकार के काम या किस प्रकार के करियर में मुझे आगे बढ़ना है? Is there any meaning to my work beyond goods, services, making a living, providing for the family? परिवार को पालन पोषण करने के अलावा, पैसा कमाने के अलावा, अपने लिए कुछ चीज़ों को खरीदने के अलावा क्या काम के लिए कोई मतलब है? Some people think maybe a little bit deeper and they try to understand what is the purpose of this work for my life and what is the purpose and plan God has in his bigger design. और कुछ लोग इस प्रकार भी सोचते हैं कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मेरे जीवन का मकसद क्या है, या जो परमेश्वर की उस महान योजना में मेरे काम क्या योगदान निभाता है। So there are so many questions that we have, we need to find answers to. और बहुत सारे सवाल है जो हमारे मन में जिसका जवाब हमें लेना है। Right? But let's try to understand what exactly is work. और आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि काम वाक्य में क्या है। So the definition of work, as per the books and the normal scholars how they call it, they say it is an activity involving mental or physical efforts done in order to achieve a purpose or a result. और यदि काम का वर्णन यदि जो आप डिक्शनरी में या जो विज्ञान लोग बताते हैं उसके अनुसार यदि आप देखते हैं, कोई भी क्रिया जिसमें हमारे मानसिक या शारीरिक एफर्ट लगता है, उसमें मानसिक या शारीरिक मेहनत लगता है, जिसके द्वारा कोई मकसद या कोई परिणाम को हम पूरा करते हैं, वो काम होता है। So you do something in order to get something. ये ऐसा है कि आप कुछ करते हो ताकि आपको कुछ मिल सके। Right? You have to put in effort, you have to put in labor so that you get a result or you get a reward. आपको मेहनत लगाना पड़ता है, आपको परिश्रम करना पड़ता है ताकि आपको कुछ मिल सके। And in most common understanding, when we say that we put in labor, we put in efforts, the result or the reward expected is the salary that we are getting. और जब ज्यादातर समय जब आप मेहनत की बात करते हैं, परिश्रम की बात करते हैं, उसके परिणाम हम क्या सोचते हैं कि हमें सैलरी मिलेगी। But that is not the case. Work is not only work which is paid for. और वो सही बात नहीं है। काम सिर्फ वो काम नहीं है जिसके लिए हमें सैलरी मिलता है। Right? We are also saying over here that you achieve a purpose or you get a result. और यहाँ पर जब हम डिफिनीशन में देखते हैं उसमें लिखा है कि हमें कोई मकसद पूरा होता हुआ देखेगा या कोई परिणाम पूरा होता हुआ हमें देखेगा। So a 5-year-old who's going to school, he has a purpose of going to school and studying. और जो 5 साल की बच्चा जो स्कूल जाता है उनके अंदर एक मकसद है कि वो स्कूल जाएं और पढ़ाई करें। A college student who's going to the college, he is spending time in the library to study the books. He has a purpose and an objective. और जो कॉलेज जाने वाले जो विद्यार्थी है वो लाइब्रेरी में समय बिताता है, बुक्स को पढ़ता है, क्योंकि उनके मन में एक मकसद है जिसे उसको पूरा करना है। It might be for exams, it might be for the purpose of getting admission into a higher degree, it might be for a better job. और ये कोई अच्छे काम अच्छी तरीके से एग्जाम में पास होने के लिए हो सकता है या और आगे पढ़ाई करने के लिए हो सकता है। Yeah, you might be a person working at home, a housewife. और आप घर पर काम करने वाली एक महिला हो सकती है। Certainly there is no remuneration in that. और घर पर काम करने के लिए आपको कोई तनख्वाह नहीं देगा। But then you work with the objective of loving the family, providing for the family. लेकिन आप इस मकसद से घर पर काम करते हैं कि आप अपने परिवार को प्रेम करें और अपने परिवार की चिंता करें। So all this is work, not necessarily paid for. और ये सारे काम जो है इसके लिए शायद आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा। So the question that comes to our mind is, why do we work? तो सवाल हमारे मन में यही उठता है कि हम क्यों काम करते हैं What is the significance of our work? और आपके काम का खासियत क्या है। See, normally when anybody asks you to introduce yourself, what do you talk about? और ज्यादातर जब कोई आपको अपने आप को परिचय देने के लिए बोलता है तो आप क्या विषय को उनके लिए परिचय देते हैं। The only thing I talk about myself is probably my name is Prashant George. और जो विषय मैं अपने लिए बोलूंगा तो मैं यही बताऊंगा कि मेरा नाम प्रशांत है। And then mostly after that I talk about what I am doing. और उसके बाद ज्यादातर मैं इसी विषय के ऊपर बोलूंगा कि मैं जो काम करता हूँ। Right? Almost all of us, when we introduce ourselves, we talk about the kind of work we are doing. और ज्यादातर जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम इसी बात को बताते हैं कि जो काम हम करते हैं उससे हम अपने आप को परिचय देते Why हैं। is that so? क्यों ऐसा है? Because we identify ourselves by the work that we are doing. क्योंकि हम अपने आप को जो काम करते हैं उससे पहचान देते हैं। Just about next week Saturday, I'm supposed to be going to a particular school as a judge.
और अगले अगले हफ्ते मुझे एक स्कूल जाना है, वहाँ पर मैं जज के रूप में एक कार्यक्रम में शामिल हूँगा। So the people in the school, they asked me to give a short profile about yourself. What are you doing? What is the work you are doing? What is your profile? So that they can introduce me. तो स्कूल के लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप अपने बारे में संक्षेप में बताना कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, ताकि हम आपको परिचय दे सकें। Right? So my work defines who I am. तो मेरा काम जो है, मैं जो काम करता हूँ वही मुझे आइडेंटिफाई देता है कि मैं हूँ कौन। Right? So in generally, if you are speaking about work, right, it depends on the story that you have associated with work. और यदि ज़्यादातर रूप में यदि आप काम के विषय में बात करते हैं तो वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है जो कहानी आप अपने काम के साथ शामिल करते हैं। So people have different stories related to work. और लोगों के पास अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं जो अपने काम के विषय में बता सकते हैं। Right? So what is the story of work that we are telling? और हम क्या कहानी बताते हैं हमारे काम के विषय पर। So if the story of work that we are talking about is a story of achievement, यदि हम जो कहानी बताते हैं उसमें कुछ हासिल करने की बात आती है, right, it means that it is from obscurity to glory. और इसका तो ये ऐसा होता है कि मतलब छोटे से लेकर के महान बनना, इसको दर्शाता है। आप कुछ भी नहीं हो और कुछ भी नहीं से आप महान बनते हो। जीरो टू समथिंग। Right? So obscurity to glory. This is the story of achievement. और यदि कुछ हासिल होने की कहानी यदि हम बताते हैं तो वहां पर आप कुछ भी नहीं थे लेकिन आप कुछ बन चुके हैं, उसको आप बताते हैं। This story is about making a name for yourself. और ये वो कहानी है जिसमें आप अपने लिए एक नाम बनाते हैं। Some of the prominent names you would be knowing from India we have, right? President Abdul Kalam. और ये कुछ महान लोगों का नाम है जो शायद आप जानते हैं, जिनमें से एक है प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। Who was nothing, probably had from a very low background, very poor family. He had to manage his family all by himself, but he rose to become the president of India. वो एक गरीब परिवार से जन्मा था और बहुत मेहनत के साथ उन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन वो आगे बढ़ कर के देश का राष्ट्रपति बन गया था। Again, another prominent person, Rajnikant, who is one of the film actors. और एक और व्यक्ति के बारे में यदि हम देखते हैं, रजनीकांत जो एक फिल्म एक्टर हैं। A very humble beginning, very low beginning, and then he rose to be one of the finest movie star in the entertainment industry. और एक छोटी सी शुरुआत थी, उनके बहुत मेहनत के साथ उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन आज एक बहुत बड़ा एक कलाकार है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। We have a sports person, Milkha Singh. और हमारे बीच में एक और व्यक्ति है जिनका नाम है मिल्खा सिंह। Right, his early childhood was really very traumatic. और उनके जो बचपन जो था बहुत दुखों से भरा हुआ एक बचपन था। There was a point when he was thinking of becoming a robber, armed robber. और वो वैसे एक समय था जब वो इस प्रकार भी सोचने लग रहा था कि वो जो चोरी करना शुरू कर दे। Right, but he worked and then he reached to a position where he was a famous athlete and he won marathons for India. और वो लेकिन मेहनत किया, आगे बढ़ कर के देश के लिए बहुत सारे मेडल्स जीता। So these are the stories of achievement, making a name for yourself. और ये कहानी है जहाँ पर आप कुछ हासिल करते हैं और अपना नाम बनाते हैं। Then we have another story which is the story of accumulation, that is from poverty to privilege. और दूसरा एक कहानी आता है जहाँ पर आप गरीबी में से अमीरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उससे आपकी कहानी बनता है। Right, this means that work is a means for comfort. और इसका मतलब यही है कि काम के द्वारा हम सुकून पाते हैं। Right, we have famous people like Dhirubhai Ambani. और हमारे पास धीरूभाई अंबानी हैं। Right, who started very very small. He was basically a trader and then he became a merchant in textiles and then he became the famous Reliance Industries. और बहुत छोटे से शुरुआत था, वो पहले व्यापार करता था छोटे मोटे, और एक छोटा सा कपड़ा का दुकान शुरू किया था उन्होंने, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत बड़ा इंडस्ट्री उनका बन गया है। We have a music composer A.R. Rahman. और हमारे A.R. रहमान हैं। He was very young when his father passed away. He had to take care of his family and then he is now a Grammy Award winner with the music that he composed. और वो जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो उन्हें अपने परिवार को देखभाल करना पड़ा, लेकिन वहाँ से उन्होंने मेहनत किया और आज बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने जीत Another गए। name you would be knowing, Gautam Adani. और गौतम अदानी के बारे में भी आप जानते होंगे। He's a college dropout, कॉलेज भी उन्होंने पूरा नहीं किया, but he is one of the chairman and the founder of one of the largest industry today. और लेकिन आज वो दुनिया के लगभग सबसे बड़ी एक कंपनी का चेयरमैन और डायरेक्टर भी हैं। So this is the story of accumulation. That means you consider work or your story of work is related to getting a means of your comfort and possessions for yourself. और ये कहानी वो है जहाँ पर आप कुछ
काम के द्वारा आप अपने लिए एक सुकून प्राप्त करते हैं, जिससे आप अपनी गरीबी से अमीरी की ओर आगे बढ़ते हैं। And then you have another story, which is the story of making the world a better place. और एक और कहानी है जहां पर आप दुनिया को खराबी स्थिति से अच्छी स्थिति की ओर लेकर जाते हैं। That is the journey from dystopia to utopia. और वो यात्रा है जहां पर सब कुछ नाश हुआ पड़ा है, वहां से उन चीजों को ठीक करने के लिए आप प्रयास करते So हैं। this is the story where you are trying to make the world a better place. Then this is the story where work means salvation. और ये वो कहानी है जहां पर आप दुनिया को एक अच्छी रीति से बनाना चाहते हैं, और यहीं पर हम देखते हैं जो उद्धार का जो काम। And we have one name over here, Jadav Molai Pyang. और यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ जिनका नाम है जादव मुलई प्यांग। He is known as the forest man of India. और उन्हें भारत के एक फॉरेस्ट मैन कहा जाता है, Where he single-handedly planted a forest in 1360 acres land. और उन्होंने अपने आप लगभग 1360 एकड़ जमीन पर उन्होंने जंगल बनाया। Right? The idea was to make the world a better place. और उनका यही योजना था कि वो इस संसार को एक अच्छी जगह बनाएं Doing something for mankind. और मानव जाति के लिए एक अच्छे काम करें। Right? And then work means a source of salvation. और उसी से हम देखते हैं कि काम जो है एक उद्धार का एक स्रोत है। So what is the story your work is telling? और आज आपके काम क्या कहानी बताता है? Who is at the center of your story? आपके कहानी के बीच कौन है? The story that your work is telling, is that a true story? जो कहानी आपकी काम बताता है, क्या वो सही कहानी है? Now we try to understand this story. हम इस कहानी को समझने की कोशिश And as I करेंगे। said, we are talking about biblical theology of work. लेकिन हम जैसे मैंने बताया था कि हम वचन से जो वचन की बातों के अनुसार काम के विषय में बात कर रहे So we'll हैं, go to the Bible. तो हम वचन की ओर जाएंगे। And we'll go to the very beginning of the Bible. तो हम वचन के शुरुआत, बाइबल के शुरुआत में हम जाएंगे। Right? And surprisingly, this story does not start with you or me. This story starts with God. और ये एक आश्चर्यचकित बात है कि ये काम का बाद हमसे शुरू नहीं होता है, काम की कहानी जो है परमेश्वर से शुरू होता है। And God tells us a very true story about work. और परमेश्वर एक सच्ची कहानी बताता है काम के विषय पे। So normally when in Christian circles, when you ask about work, without giving much thought, people talk about sin and then work happened after that. और यदि मसीही समाज में यदि आप काम के विषय में बात करते हैं, लोग बिना सोचे ये बोल देते हैं कि पहले पाप पृथ्वी पर आया और उसके बाद काम आना शुरू हो गया। And we know that because of sin we are supposed to work and there will be problems, there will be troubles, and this will go on until the time Jesus comes again. और हम इस प्रकार कहते हैं कि पाप के कारण हमें काम करना पड़ रहा है, हमें मेहनत करना पड़ रहा है, और इस तरीके से यीशु मसीह जब तक वापस नहीं आएगा तब तक होता रहेगा। But this storyline, it puts work in a negative light. और ये जो कहानी है ये काम को एक नकारात्मक तरीके से डाल देता है। But that is not the true story of work. लेकिन ये सही कहानी नहीं है काम को लेकर के। And today we will very basically try to understand what is work from the Bible. और हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि काम की कहानी क्या है, उसे हम बाइबल में से देखते हैं। So the story of work actually started right before even the fall, at the time of creation. और काम की शुरुआत जो है, काम की कहानी की शुरुआत जो है, पाप होने के पहले ही, क्रिएशन से ही, उत्पत्ति से ही शुरू हो गया है। Right? It begins from the Garden of Eden. और ये एदन की वाटिका से शुरू हुआ है। And this continues right up to Revelations in chapter 21, where we talk about the new heavens and the earth. और ये वहां तक चलता है जो हम प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में जहां हम देखते हैं, जहां नया आकाश और नई पृथ्वी की बात की जाती है। Right? So the beginning of work is not at the time of fall. और जो काम की शुरुआत जो है पाप के आने से शुरू नहीं हुआ है, It is much before that, right in the beginning at the time of और creation. उसके पहले ही जो सृष्टि के समय से ही काम के विषय के ऊपर बातचीत होती है। So this is the story we are going to talk about today. और आज इसी कहानी के ऊपर हम बात करेंगे। Like all good stories, this story also has a middle portion which has a tragic process and a situation, and then a rescue also. और हर कहानी की जैसा इस कहानी के बीच में भी कुछ दुखद बातें आएंगी, लेकिन उसके बाद उससे ही हो जाता है, वो रिस्टोर हो जाता है। I have talked about an example of you going watching a movie. और मैंने आपको इसके पहले भी एक उदाहरण दिया था जहां पर आप एक मूवी देखने जाते हैं। Right? If you go and reach the cinema hall in the middle of the movie, maybe during the intermission or something like that, you miss out on the storyline. और यदि आप सिनेमा स्टार्ट होकर के उसके बीच में जाते हैं तो आप शुरुआत की कहानी को आप नहीं समझ पाते हैं। Right? So you don't understand what is happening. Why is the hero running after this person? Why is
there is chaos all around. और तो आप इस पूरी कहानी को समझ नहीं पाएंगे कि हीरो क्यों विलन के पीछे भाग रहा है, यहाँ पर इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं। Why? Because we missed the beginning. क्योंकि हमने शुरुआत की बातों को सुनना या समझना भूल गए हैं। And that is what is happening in God's story also. और यही परमेश्वर की कहानी में भी हो रहा है। We are in the middle of the story. हम उस कहानी की बीचों बीच में We हैं। look all around and we are questioning why is the world in such a state. हम अपने चारों तरफ देखते हैं और इसी सवाल को पूछते हैं कि दुनिया इस प्रकार की परिस्थिति में हूँ क्या, Right? क्यों है? Why am I working? Why am I slogging so hard? मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ? मैं हर दिन क्यों काम कर रहा हूँ? Why my work is like a burden? क्यों मेरा काम मेरे लिए एक बोझ बना हुआ है? Why am I not happy? Why am I not satisfied? और क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूँ? क्यों मैं आनंदित नहीं हूँ? We try to go to the Bible to look for solutions. और उसके बाद हम वचन में जाने के लिए कोशिश करते हैं, वहां से हम प्रावधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। But as most believers will probably prefer to look at the New Testament and try to look at the New Testament, what is it talking about? और लगभग हर विश्वासी की तरह हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम नया नियम को देखें और नया नियम में हमारे लिए क्या सुविधा दी गई है उसको हम देखना शुरू करते We हैं। think Old Testament is past, it is history, not required. हम यही सोचते हैं कि पुराना नियम है, वो इतिहास हो चुका है, वो अभी हमारे लिए लागू नहीं होता। But please remember, you are in the middle of the story. आप लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आप एक कहानी के बीच में हैं In order to understand what is happening around you, you need to know the beginning of the story. और इस बात को समझने के लिए कि क्या हो रहा है आपको कहानी की शुरुआत को भी जानना जरूरी That's है। what we'll try to do today. और वही आज हम करने की कोशिश करेंगे। So God's story of work, it is basically divided into 4 parts. और परमेश्वर की जो काम की कहानी जो है वो 4 भाग में बटी हुई है। Right? You have creation, you Ah. have fall, you have redemption, and you have restoration. और आपके पास रचना है और उसके बाद पाप है और उस पाप से आपको रिडेम्पशन की बात हो रही है और वहां से आपको पुनर्स्थापित करने वाली बात भी हो रही So these है। are the 4 parts which are related to God's story of work, and God is working through all this. और ये जो 4 भाग है जो परमेश्वर की काम की कहानी में है और इन सारे बातों में परमेश्वर काम कर रहा है। If we understand God's story, we will understand our story related to work also. और यदि हम परमेश्वर की कहानी को समझेंगे तो हम अपने कहानी को भी समझने में सफल होंगे। And more importantly, we'll understand our lives. और उससे बढ़कर के हम अपने जीवन को समझेंगे। Right? So we talk about creation. हम रचना के बारे में बात करते Today हैं। we'll focus on creation. आज हम रचना के ऊपर ध्यान लगाएंगे We'll try to have a very clear and crisp understanding of what is work. और हम इस रचना की कहानी से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि काम क्या है। So as I said, the story of work does not begin with us, it begins with God. और जैसे मैंने बताया था कि जो काम की कहानी जो है हमसे शुरू नहीं होता है, वो परमेश्वर से शुरू होता है। Can someone take out Genesis chapter 1 verse 1? Just कोई- read it in English and Hindi. और कोई उत्पत्ति 1 का 1 खोलें और इंग्लिश में भी पढ़ें और हिंदी में भी पढ़ें। परमेश्वर ने आसमान और आकाश और पृथ्वी का रचना किया। The very first verse in the Bible talks about work. और बाइबल के सबसे पहला वचन जो है वो काम के विषय में बात करता है And it talks about God who is working. और वो परमेश्वर के बारे में बात करता है जो परमेश्वर काम कर रहा है। So God is the worker over here. और यहाँ पर काम करने वाला कौन है? परमेश्वर। And work is important to God. और परमेश्वर के लिए काम बहुत महत्वपूर्ण है। Right? If it was not important, the Bible would not have started with God as a worker. यदि वो महत्वपूर्ण नहीं था तो बाइबल परमेश्वर काम कर रहा है कह करके शुरू नहीं होता। So very important for us to understand that work is important to God and our work, my work, matters to God. और इसलिए इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि काम परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं जो काम करता हूँ, मेरा जो काम है वो भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण होता है। So if you look at the first 2 chapters in the book of Genesis, we are told that God is working continuously. यदि आप पहले 2 अध्याय जो उत्पत्ति में यदि आप पढ़ते हैं वहां पर आप लगातार देख पाते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। Right? We are told about 7 times that God created something. और हम लगभग 7 बार देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर ने कुछ बनाया है। Right? He created the heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया He created the great creatures of the sea and the living things. और जमीन और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को परमेश्वर ने He बनाया। created mankind. He created male and female. परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदमी और पुरुष के रूप में बनाया। And then there are about 12 times the word made or formed is used. और लगभग 12 बार बनाया इस शब्द का इस्तेमाल होता है। Right? He made the vault which separated the waters from the heaven and the earth.
परमेश्वर ने उस आकाश मंडल को बनाया जो पानी को पृथ्वी से अलग किया था। He made two great lights to rule the day and the night. परमेश्वर ने दो बड़ी तारों को बनाया, एक दिन में राज करने के लिए और एक रात को राज करने He के made लिए। all the stars. और उन्होंने सारे तारों को बनाया, He made wild animals. उन्होंने जंगली जानवरों को बनाया, Right? He made trees and the plants. और उन्होंने पेड़ पौधों को बनाया। And we are told he also made the woman. और उसके बाद हम इस बात को भी देख रहे हैं कि परमेश्वर ने महिला को भी बनाया। And all this creating and making and forming is summarized as work. और ये सारी बनाना और सृष्टि करना, ये सारी बात इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर काम किया है। Can we just read Genesis chapter 2 verse 2? कोई उत्पत्ति 2 और उसका दूसरा वचन पढ़ें। Right? By the seventh day, God finished the work he has been doing, and on the seventh day, he rested from all his work. Right? So after all the work that he had been doing, it is summarized over here that he rested from his work. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने सारे काम करने के बाद वो 7वें दिन विश्राम किया। Right? So we understand over here in the beginning, God is seen to be the worker and he's working. और जो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं वो यही है कि शुरुआत में हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर काम करने वाला है। Work did not start with man. और काम जो है इंसान से आरंभ नहीं हुआ है। Work was not given to man as a punishment. और काम जो है इंसान के लिए एक दंड के रूप में नहीं दिया गया है। God enjoys working. और परमेश्वर काम करने में आनंद रहता है। Right? You see, when God has created everything, he saw what he has created and he said it was good. और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसको देखने के बाद परमेश्वर यही कहता है कि ये अच्छा है। Right? Now, when we understand the story of work with respect to God, it is important because then we come to the next portion of the story. और जब हम परमेश्वर की कहानी में परमेश्वर के काम के बारे में जब हम देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि इसके बाद उसके अगले पहलू में हम आते हैं। You know, the greatest moment of creation activity of God was not creating the world, the universe and the galaxies. और परमेश्वर के उस सृष्टि की कहानी में ये महान काम यही नहीं था कि परमेश्वर ने आकाश मंडल को बनाया और बहुत सारे तारों को बनाया। Right? The greatest moment of his creation activity came when he created human being. और वो महान कार्य जब हुआ जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया। Right? So Genesis 1:27 talks about this. God decided to create human being in his own image. और उत्पत्ति 1:27 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने फिर निर्णय लिया कि इंसान को आदम को अपने रूप में वो बनाए। So human beings, you and me, we are a work product of God. तो इंसान यानी आप और मैं परमेश्वर के काम का एक परिणाम है। Right? We are a work product of God. God worked and he created you and me. और हम परमेश्वर के काम के परिणाम हैं। परमेश्वर ने काम करके हमें बनाया है। We are carefully thought of and then created. और हमें बहुत ध्यान पूर्वक सोच समझ करके परमेश्वर ने हमें रचा है। You know, in the entire creation, God was just speaking out and things were happening. और सारे रचना की कहानी में परमेश्वर सिर्फ शब्दों को बोलता है और वो चीज आ जाती है। But it is only at the time of creation of man that there was a conference, there was a discussion, there was a debate, and then decided that let's create man in our own image. लेकिन जब इंसान को बनाने के समय आता है तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने आप बात कर रहा है, अपने आप चर्चा कर रहा है और बातों को समझ करके उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बना रहा है। Right? We understand that in this whole process of creation, there is the triune God which is at work. और हम इस बात को समझ सकते हैं कि सारे सृष्टि के इस कहानी में उस त्रिएक परमेश्वर का कार्य है। Right? The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they all are there discussing that let's make man in our own image. और जो परमेश्वर जो पिता है, परमेश्वर जो पुत्र है और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, इन तीनों ने मिल करके इस बात को निर्णय लिया कि हम इंसान को बनाएं। So man is made in the image of God. तो इंसान जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। And it may mean a lot of things. और ये बहुत सारे बातों को हमें बता सकता है। Right? But primarily it means that we were created to be a reflection of God
on this earth. लेकिन प्राथमिक तौर पर वो इस बात को दर्शाता है कि हमें इसलिए रचाया गया है ताकि हम परमेश्वर के परिचय बन के परमेश्वर के स्वरूप को इस धरती पर हम प्रदर्शित कर सके। Right? God wanted his image to be there in the entire earth, so he created man. परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के स्वरूप इस सारे संसार में रहे, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया। We are supposed to be a representation of God in this world. और हमें परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना है, परमेश्वर को दर्शाना है इस धरती पे। Right? We see this in Genesis chapter 1 verse 28. और इसे हम उत्पत्ति 1:28 में हम देखते हैं। Right? This is God speaking to man for the very first time after he has created him. और ये सबसे पहली बार परमेश्वर इंसान से बात कर रहा है उनको रचने के बाद। And he says, it says, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth. और इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे ये आशीष कहा और ये आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। Right? Till this point it was good. यहाँ तक सब कुछ सही था। Right? Because this is the same blessing God is speaking to the plants, to the animals, everything that he has created. क्योंकि यही आशीष परमेश्वर हर प्रकार के जीव जंतु जिनको उसने बनाया उन सबको यही आशीष दे रहा था। Genesis 1:22 talks about this. और उत्पत्ति 1:22 इस बात को हमें बताता है। He's telling them to be fruitful and to fill the earth. और परमेश्वर उन सबको फ्रूटफुल रहने के लिए, फलदायक रहने के लिए और धरती को भरने के लिए कहता है। So this means like all other creatures, we were meant to reproduce and to expand and to fill the earth. और इसका अर्थ ये है कि हम सारे दूसरे जीव जंतुओं के समान हमें भी परमेश्वर ने इस प्रकार का आशीष दिया कि हम फूले फलें और इस पृथ्वी को भर दें। But God does not stop over there. लेकिन वहां पर परमेश्वर ने रुका नहीं है। We are not just to fill the earth, हमें सिर्फ पृथ्वी को भरना ही नहीं, but the blessing continues and it says, subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. क्योंकि उसके आगे परमेश्वर ये कहता है कि और उससे फूलो फलो पृथ्वी को भर दो और उसे अपने अधिकार में कर लो, समुद्र की जानवरों, आकाश की पक्षियों और भूमि के समस्त जानवरों को तुम्हारे अधिकार में रख लो। Subdue it, rule over the fish of the sea. उसे अधिकार में, उसके ऊपर अधिकार करो और उसके ऊपर प्रभुता रखो। Right? This is work to do. और ये एक काम है जिसे हमें करना है। Right? This does not happen automatically. ये अपने आप नहीं होगा। Right? This is something God has entrusted us with. और ये कुछ विषय है जिसके ऊपर परमेश्वर ने हमारे ऊपर भरोसा करके हमें सौंपा है। So we were created with the objective of work in mind. और हमें इसलिए रचाया गया है, परमेश्वर ने जब हमें रचा है तो परमेश्वर के मन में यही एक विचार था कि हम काम करें। And right after creating, God is blessing the man and he's giving him the work to do. और इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर उस आशीष को भी दे रहा है और कहता है कि काम करने के लिए। And it is not just any kind of work, और ये साधारण या कोई भी काम नहीं है, but it is work that reflects the very nature of God. लेकिन ये वो काम है जो काम परमेश्वर की दृष्टि को दर्शाता है। Right? God is clearly the king over the creation. और हम जानते हैं परमेश्वर सारे रचना के ऊपर राजा है। And he says to the man, he says to the human being that you rule in my place. और वहां पर परमेश्वर ये कहता है कि मेरे जगह पर तुम राज्य करो। Right? You be my representative and you rule over the world. और तुम मेरी प्रतिनिधि बनकर मेरी जगह पर तुम राज्य करो। Right? You are my image bearer, my reflection in this world. तुम मेरी स्वरूप को ले जाने वाले हो और तुम मुझे प्रस्तुत करोगे। This is where God's work, the creation activity, was completed. और यहीं पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का काम यानी जो सृष्टि की कहानी है वो समाप्त होता है। So God made everything, God did his work, he made man and he entrusted man with the work and then his work was completed. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने उस काम को मनुष्य के ऊपर सौंपा और इस काम की कहानी जो है यहाँ पर समाप्त होती है। And what is his feeling after doing all this? Can तो ये- someone read Genesis 1:31? और ये सब करने के बाद परमेश्वर के मन में क्या विचार आया है, हम उत्पत्ति 1:31 को देखते हैं। Right? God saw what he had created and he saw that it was very good. परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसे उन्होंने जब देखा परमेश्वर को सब अच्छा लगने लगा। Right? He worked,
He made man and he gave him work to do. और परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने उस जिम्मेदार को इंसान के ऊपर दिया ताकि इंसान अब काम कर सके। So in chapter 2 also we see God is working. और अध्याय 2 में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर काम कर रहा है। But this work is not the work of creation. और यहाँ पर रचना की काम नहीं है, But this is the work of ruling and ordering. और ये राज्य करना और आदेश देने के काम है। And we see that in this particular chapter God plants a garden. और यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर एक बगीचे को बनाता है, And this is literally a paradise on earth. और ये वास्तविक रूप में एक स्वर्ग है जो परमेश्वर ने इस धरती पे बनाया। Right? And he takes man and he puts him into that garden. और परमेश्वर ने इंसान को लिया और उसे उस बगीचे में रखा। Right? So the question comes is, God has made this world, it was a perfect world. Why do you need a separate garden? और हम हमारे अंदर ये सवाल उठ सकता है कि परमेश्वर ने तो इस धरती को सब सही रीति से बनाया, तो उसके बाद क्यों अलग से एक जगह बनाने की जरूरत थी? In a perfect world, why do you need a separate paradise? Eden. एक अच्छी एक धरती पर जहाँ पर सब कुछ सिद्ध है, वहाँ पर क्यों अलग से एक पैराडाइज की जरूरत है? Right? The answer to that could be that God created a perfect place where human beings can flourish. और ये इसका उत्तर ये हो सकता है कि परमेश्वर ने एक सिद्ध जगह इसलिए बनाया ताकि वहां पर इंसान बढ़ सके। Right? It was perfectly adapted to human flourishing. और वो इतनी अच्छी रीति से बनाई गई थी ताकि वहां पर इंसान बढ़ सके। So verse 2, chapter 2 verse 15 says, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. और 2:15 इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने इंसान को लिया और उसे उस बगीचे में रखा जिसको परमेश्वर ने बनाया, और वहां पर इसलिए रखा था ताकि वहां पर काम करे और उसकी देखरेख करे। Right? One can say that God has made everything and it is perfect. What is there for the man to do? और हम ये पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने तो सब कुछ बनाया, सब कुछ सिद्ध है, तो इंसान को वहां पर क्या काम है? Right? The work over here is to take care of the garden and to expand it. और यहाँ पर इंसान का काम यही है उस बगीचे की देखभाल करना और उसको और आगे बढ़ाना। Right? They are supposed to tend the garden to make it flourish, to expand it and to also protect it. उनका काम यही था कि वहाँ उस बगीचे की देखरेख करे ताकि वो बगीचा और अच्छे से बढ़ सके और वहाँ पर वो और फैल सके। Right? If you look at this context of work and apply it to yourself, it is actually a pattern of work that we all are doing. और यदि इस कहानी की इस पैटर्न को यदि हम अपने काम के ऊपर लागू करते हैं तो हम इसी रीति से काम को भी कर रहे हैं। And it is actually God's work that we are doing. और ये वास्तव में हम परमेश्वर के काम जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम कर रहे हैं। Right? Tending to the garden is basically taking care of what God has provided us. और जो बगीचे की देखरेख करना है उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसको हमें देखभाल करना है। Using the natural resources that God has provided, we need to create something new. और जो कुछ हमें इस पृथ्वी से मिलता है उसे इस्तेमाल करके हमें कुछ नया नया बनाना है। When we create something new, we are doing the creation activity of what God did. जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम उस दृष्टि को दर्शाते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने कुछ नया बनाया। That helps us in growing and flourishing. और वो हमें मदद करता है बढ़ने में और फैलने में। Right? And this is for the common good of people. और ये साधारण रूप में सारे लोगों की भलाई के लिए है। Right? It is also for human flourishing. और ये इंसान की भी बढ़ोतरी के लिए भी है। Right? Then Adam was asked to guard and protect the garden. और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे को सुरक्षित रखने के लिए भी आदेश Right? दिया। Why guard and protect? So that nobody or nothing spoils or harms the garden. सुरक्षा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस बगीचे के अंदर कोई खराब परिस्थिति ना आ जाए। Likewise, we are also called to guard and protect the environment in which we are. और इसलिए हमें भी परमेश्वर ने बुलाया ताकि हम जो वातावरण में हम रहते हैं उसको हम सुरक्षित रख सके, उसको हम खराब होने ना दें। Right? We restore things, we take care of things so that they are not spoiled or there is no harm brought to हम them. चीजों को देखभाल करते हैं ताकि वो खराब ना हो और उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। Right? So this pattern of work is very important to understand because we can correlate to that and every work that we are doing can be understood in that manner. और ये जो कहानी है इसको हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम अपने काम के साथ तुलना कर सकते हैं ताकि हम भी इस रीति से कर पाए। Now for a moment just think with me about the Garden of Eden. कुछ समय के लिए मेरे साथ ये सोच आप अपने मन में लेकर आए गार्डन ऑफ एडन के बारे में। Right? Garden of Eden was a paradise created by God for
human beings to flourish. और ये बगीचा जो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है जहाँ पर इंसान बढ़ सके। We don't have anything like that anymore on the earth. और अब हमारी पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है। Right? One can say there are so many beautiful gardens all around the world. और शायद आप कह सकते हैं कि सारे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं, But nothing like the Garden of Eden. लेकिन वो कुछ भी उस एदन की वाटिका के साथ वो तुलना नहीं कर So सकते what हैं। is so unique about the Garden of Eden? तो इसमें क्या खासियत है? Right? The Garden of Eden, it is a home. वो एक घर था, Right? It is a home for Adam and Eve where they could stay, they could have a family, they could expand and live in comfort. वो घर था आदम और हवा के लिए, जहाँ पर वो रह सके, जहाँ पर वो काम कर सके, जहाँ से वो बढ़ोतरी कर सके। Right? So it is a place like we all have our homes, that was the home for them. और जो जैसे हमारे लिए आज हमारा घर है, उस रीति से उनके लिए आदम की वाटिका जो है उनके लिए घर था। But the Garden of Eden was not just a home, it was also a temple. और वो सिर्फ उनके लिए एक घर नहीं था, वो उनके लिए एक आराधना का स्थल भी था। It was a temple where they could meet with God, commune with Him, and spend time with Him. जो ये वो मंदिर है जहाँ पर वो परमेश्वर के साथ मिल सकते थे, परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते थे, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते थे। So it is their home, it is their temple also. और वो उनका घर भी था और उनके आराधना का स्थल भी था। And not just that, it is also their workplace. और सिर्फ वही नहीं था, आदम की वाटिका जो है उनके काम का जगह भी था। This was the place where they could engage in productive labor which God had given to them. और ये वो जगह था जहाँ पर वो लोग अपने काम कर सकते हैं जिस काम को परमेश्वर ने उन्हें दिया है। So it was their home, it was their temple, it was also their workplace. वो उनका घर भी था, वो उनका आराधना स्थल भी था और वो उनका दफ्तर भी था। You and I, we can never experience what they had experienced. और मुझे और आप, हम कभी भी इस प्रकार के अनुभव को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। Right? We live in a world where there are divisions and there are conflicts between church, home and workplaces. और क्योंकि हम वैसे एक धरती पर अभी जीवित हैं जहाँ पर कलीसियाओं के प्रति विभाजन है, परिवारों के प्रति विभाजन है, काम के प्रति भी विभाजन है। I'm sure each one of us at times we are so much burdened with the thought process. I'm not able to give enough time to my work, to my family, to my church. और हम कई बार इस प्रकार हो जाते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे विचार घूमता रहता है कि हम अपने काम को भी सही समय नहीं दे सकते, हमारे परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं और कलीसिया के लिए भी समय नहीं दे पाते हैं। That is the result of the fall. और यही वो पाप के परिणाम है। Right? We are living in a world where there is a separation between home, the temple and the workplace. और हम वैसे एक धरती पर जी रहे हैं जहाँ पर हर प्रकार के चीजों में विभाजन आ चुका है, जैसे घर, आराधना का स्थल और दफ्तर। But for Adam and Eve, this was not the case. और लेकिन आदम और हवा के लिए ये प्रॉब्लम नहीं था। Their home was a temple and was also their workplace. और उनका घर ही उनका आराधना का स्थल था और वही उनके दफ्तर भी They था। didn't have this daily struggle of finding time for home, workplace and church. और उनके लिए ये बहुत मेहनत वाली काम नहीं थी कि हर दिन वो अपने घर के लिए समय निकालें, काम के लिए समय निकालें और आराधना के लिए समय निकालें। And it is in this amazing world, the Garden of Eden, that their work was to take care of. और ये वही जगह पर जहाँ जो ईदन की वाटिका में जहाँ पर उनका काम है देखभाल करना। Right? They were supposed to take care of their garden, home, temple and workplace and make it flourish. और उनका काम यही था कि वो अपने घर को देखभाल करें, उनके काम को देखभाल करें और उनकी आराधनालय को देखभाल करें ताकि वो बढ़ सके। So they are supposed to make it flourish, they are supposed to make it grow, they are supposed to expand it. और वो उसे परमेश्वर चाहता था कि वो उसे बढ़ाए, उसे और उन्नति में लेकर आए। Right? So that it doesn't remain just a small corner of the world, but it spreads out throughout the entire earth. ताकि वो सिर्फ दुनिया के कोने में ही ना रहे, वो दुनिया भर फैल जाए। And why was God expecting them to do this? और परमेश्वर ने ऐसा क्यों सोचा कि इंसान को इस काम को करना है? Right? He has given them a small paradise to live. You know, most of us will be very happy, very satisfied. I've got my small paradise, my family, my work, my church, all going so well. Let me just enjoy over here. क्योंकि कई बार हम इस रीति से सोचने लगते हैं कि मेरे लिए एक छोटा सा स्वर्ग मिल चुका है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मेरे परिवार है, तो हम उससे आगे नहीं सोचते हैं। You know, we all are looking for our own utopias. और हम सब अपने लिए एक सिद्ध दुनिया को ढूंढते हैं। Right? The perfect
place where we, my family, my work, we can just enjoy. और वो अच्छी जगह जहाँ पर मैं अपने परिवार का देखभाल करूं, मेरा एक अच्छा काम है, सब कुछ मेरे लिए हो जाए। But God's expectation from Adam and Eve was not just that. लेकिन परमेश्वर का योजना आदम और हवा के लिए नहीं था। And God created them as His image bearers. और परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर के स्वरूप को ले जाने के लिए बनाया था। Just as God created, He expected the man also to create. और परमेश्वर ने चाहा कि जिस रीति से मैंने इंसान को बनाया, उस रीति से इंसान भी कुछ चीजों को बनाए। Just as God ordered and managed things, He was expecting man also to order and manage the things. जिस रीति से परमेश्वर ने आदेश दिया और चीजों को देखभाल किया, उसी रीति से परमेश्वर चाहता था कि हम इंसान भी चीजों को अपने नियंत्रण में ले आए, उसकी देखरेख करें। Just as God created a fruitful and flourishing world, He was expecting man to protect what was given to him and to advance and flourish. जिस for रीति से mankind. परमेश्वर ने एक फलदायक और एक अच्छी सी बढ़ने वाली दुनिया को बनाया, उस रीति से परमेश्वर भी सोच रहा था कि इंसान को उस काम को करना है। So the job of Adam and Eve, or the work of Adam and Eve as God's representative, was to carry the work where what God had begun and to take it forward. और जो काम परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया है, वो यही था कि जो काम परमेश्वर ने किया था, उस काम को और आगे ले जाए। So as representative of God, they were supposed to carry it on. और परमेश्वर की प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें उस काम को आगे ले जाना था। But what was the objective, the ultimate goal? लेकिन उसका जो परिणाम या अल्टीमेट गोल क्या था, It was not for themselves. तो वो उनके लिए नहीं, It was not to prove who they were. और वो इस बात को स्थापित करने के लिए नहीं कि वे कौन हैं, It was not to make an identity for themselves. वो इस बात के लिए नहीं कि वो अपने आप को एक पहचान बनाए, But it was to show off His glory. और इसलिए था ताकि इंसान परमेश्वर की महिमा को दर्शाए। So you know, the very important point over here is that it is not me who is revealed by the work I'm doing. और इस यहाँ पर मैं तो बात यही है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मैं अपने आप को परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, Right? But it was revelation of God through the work that we are doing. लेकिन मेरे काम के द्वारा परमेश्वर की प्रकाशन हो। So Adam and Eve, it was not their identity, it was not who they were by the work they were doing. और आदम और हवा के लिए वो उनके परीक्षा नहीं था कि उनकी परीक्षा ही नहीं था कि उनके काम के द्वारा वो अपने आप को पहचान में लाए, But they were bringing a revelation to who God was by the means of their work. लेकिन वो उनके कामों के द्वारा वो परमेश्वर कौन है इस बात को वो लोग They दर्शाते were हैं। made in His image. वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, And every work that they were doing was a testimony to God. और जो भी काम वो कर रहे थे वो परमेश्वर के गवाही है। So the very first lesson, basically a summary of this particular discussion that we are having, the first lesson from this story is that the original purpose of human work was advancement and flourishment of human beings. तो आज हमने जो शिक्षा प्राप्त की उसका यदि हम जो हमने सीखा उसका यदि हम बात करेंगे तो इंसान को बनाया जाने का खास मकसद यही था ताकि इंसान बढ़ सके और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल Right? सके। This is advancement of human beings, flourishing of human beings, but for the glory of God. और इसमें हम देख सकते हैं कि इंसान को बढ़ना है, इंसान को फैलना है, लेकिन उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना है। Any and every work that we are doing in whatever sphere you might be operating, whether it is home, whether it is in the church, whether it is at your workplace, it is to show the goodness and magnificence of God. और कोई भी कार्यस्थल पर आप काम करते हैं, शायद आप अपने घर पर ही काम कर रहे होंगे, आप कलीसिया में आकर के काम करते हैं या आप अपने दफ्तर में काम करते हैं, हर बातों में आपको परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए काम करना है। Always remember, you are the image bearer. और आप हमेशा इस बात को याद रखना कि परमेश्वर की दृष्टि को ले जाने वाले आप हैं। Right? An image bearer does not have an identity of his own. और जो इस प्रकार का काम करता है उनके लिए अपना एक परिचय नहीं होता, It is the identity of the one whom he is reflecting. उनके पास सिर्फ यही पहचान होता है जिनकी पहचान को लेकर के वो चलता So है। as an image bearer of God, it is our responsibility to show His goodness and His magnificence through our work. इसलिए जब हम परमेश्वर के पहचान को लेकर के चलते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की भलाइयों को दूसरों के साथ फैलाएं। And how do we do it? हम उसे कैसे करेंगे? We do it by cultivating the garden that God has entrusted हम us. उसे इस रीति से कर सकते हैं
कि जो वाटिका परमेश्वर ने हमें दिया है उसको बढ़ाने के द्वारा, उसमें काम करने के द्वारा। Adam and Eve were given the Garden of Eden to take care of. और आदम और हवा को उस वाटिका को दिया गया था ताकि वो उसको देख रेख कर सके। God expected them to work and expand that garden. परमेश्वर उनके ऊपर इस प्रकार भरोसा किया कि वे उधर काम करेंगे और उसको और फैलाएंगे, By means of that work, it was glorifying God. और उस काम के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। What is the garden God has entrusted you with? और आज आपके जीवन में परमेश्वर ने कौन सी वाटिका को दिया है, What is the garden God has called you to cultivate? और परमेश्वर ने आज कौन सी बगीचे को आपको दिया है जिसमें आपको काम करना है। What is the kind of work you are doing which is helping human beings to flourish? और वैसे क्या काम आप करते हैं जो दूसरे इंसान को बढ़ने में मदद करता है, And is the work that you are doing is bringing praise and glory to God? और जो काम आप कर रहे हैं क्या ये परमेश्वर के नाम को महिमा ले आता है। So when we look at work in the context of the understanding we now have, और जब हम काम के विषय में जो समझ अभी हमारे मन में उसके अनुसार यदि हम देखते हैं that it is for human flourishing and to bring glory to God, और ये इसलिए था कि इंसान की बढ़ोतरी हो सके और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। work with this purpose and objective in mind, work is first and foremost worship. और इस रीति से यदि हम सोचने लगेंगे तो हमें ये समझ आने लगेगा कि काम जो है सर्वप्रथम एक आराधना है। What Adam and Eve were doing in the Garden of Eden was worshipping God. और जो आदम की वाटिका में जो आदम और हवा जो काम कर रहे थे वो वाकई में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। Everything that they were doing in that garden was to bring honor and glory to God. और जो कुछ वो उस बगीचे में कर रहे थे वो परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए। Every work, every activity was imitating God as His image bearers. और जो कुछ भी परमेश्वर ने वहाँ पर करने के लिए उन्हें रखा है उन सब के द्वारा वो परमेश्वर की परमेश्वर की इमेज को ले जा रहे थे। Is our work a means of worship to God? और क्या हमारे काम परमेश्वर की आराधना का एक तरीका है? Or are we only looking at work as our identity? तो या फिर हम सिर्फ काम को हमारे पहचान के लिए ही देखते हैं, Something that defines me, और जो हमें डिफाइन करता है, something for which I stand. और जिसके लिए मैं खड़ा हूँ। You know, the danger in that is that if I do not have work or somewhat I lose my job, I do not have an identity. और इसका खतरनाक बात ये है कि यदि आपके पास वो काम आगे से नहीं रहेगा, वो काम आपसे दूर चला जाएगा, तो आप अपने पहचान को भी खो देंगे। But praise God, we do not have our identity in this world. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें इस रीति से हमारे पहचान इस धरती पर नहीं है। Our identity is in Christ. Hallelujah. हालेलुया, हमारे पहचान प्रभु यीशु मसीह में है। Right? We are known by who we are in Christ. और हम अपने आप को यीशु मसीह में पहचानते हैं। Right? So the work that we are doing is not for ourselves. और जो काम हम कर रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। Right? It is the work, it is the garden God has given me to cultivate. और ये काम और ये जो बगीचा परमेश्वर ने मुझे दिया है वो वहीं पर मैं काम कर रहा I हूँ। need not just focus on working, getting a paycheck. और मैं सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि मुझे काम करना और मुझे सैलरी प्राप्त करना है। I need not just work that I will work for a month, I'll get salary and I'll provide for my family. और मुझे इस प्रकार का सोच नहीं रखना है कि मुझे पूरे महीने काम करके सैलरी प्राप्त करके परिवार को देखभाल करना है। Right? Work was originally not created as a means for remuneration. और वो काम जो है वाकई में इस प्रकार नहीं बनाया गया था कि उसके द्वारा आपको कुछ मिल सके। You know, many years back, I was thinking like this when I was saved and I saw God working in my life. I saw that He was taking care of everything. और जब बहुत सालों के पहले जब मैं नए विश्वास में आया था तो मैं इसी प्रकार सोचने लगा क्योंकि परमेश्वर मेरे हर एक जरूरतों को पूर्ति करता था। We were new with our family, we had young kids and all, we were going out of the country. There were many problems that we were facing. हम बहुत जवान थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे और हम भारत को छोड़कर भी बहुत सारी जगहों पर जा रहे थे और बहुत सारी समस्याओं को भी हमें सामना करना पड़ा। In all those situations, in all those problems, we found God faithfully working beside us. और उन सारे परिस्थितियों में हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के साथ हमारे बीच में काम किया है। Whether it was financial problems, whether it was illness or sickness, whether it was relationship problems, whether it was being all by yourself, God was taking care of everything. चाहे वो मतलब आर्थिक स्थिति हो या हमारे शारीरिक कमजोरियों की बात हो या परिवार के रिश्तों की बात हो, हर चीजों में परमेश्वर हमारी देखरेख कर रहा था। I was able to understand that I am chosen by God and hence I am saved.
और मैं इस बात को समझ पा रहा था कि क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ और मैं परमेश्वर के द्वारा बचाया गया हूँ, So I am saved. I don't have to worry about my salvation. और इसलिए मुझे अपने उद्धार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। Bible tells me once God chooses you, He will not leave you. He will not abandon और you. क्योंकि वचन कहता है कि यदि परमेश्वर आपको चुनने के बाद परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Bible also tells me that He will take care of my every need. और वचन इस बात को भी बताता है कि परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता I है, saw that practically in my life. और मैं उसे वास्तविक रूप में मेरे जीवन में देखा। Every situation, every problem in my life, I knew I could not handle, but I saw the hand of God. He was taking care. हर परिस्थिति, हर विषयों में जब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, तो मैंने परमेश्वर के हाथ को मेरे जीवन में काम होता हुआ देखा। I had this one burning question in my mind. मेरे मन में एक इस प्रकार के बड़ी सवाल मेरे अंदर आ रही थी। God, you have saved me. परमेश्वर आपने मुझे बचा लिया है, I know that salvation is for me. और मैं इस बात को जानता हूँ कि उद्धार जो है वो मेरे लिए है, I know you died for my sins. और मैं जानता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मरे हो, I know my restoration has been done with the God the Father. और मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापना हो चुका है, And you are taking care of all my needs. और आप मेरे हर एक जरूरतों को देखभाल कर रहे हो। My question was, God, what am I doing on this earth? लेकिन मेरा सवाल ये था कि परमेश्वर मैं इस धरती पर क्या कर रहा Why हूँ, am I not with you? क्यों मैं आपके साथ नहीं हूँ? Right? I need to be there. You have saved me. I need to be there with you. क्योंकि आपने मुझे बचाया, तो मुझे आपके साथ रहना है अभी। The Bible tells me, it gave me the answer that God has plans for my life. और लेकिन वचन मुझे जवाब दिया है, और वचन में ये जवाब है कि परमेश्वर के लिए मेरे पास कुछ योजनाएं हैं, God has some work to be established by my life. और परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा कुछ चीजों को पूरा करना The चाहता Bible है। tells us that we are His hands and feet on this earth. और वचन इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर का हाथ और पैर हैं हम इस धरती पर, Right? God is in the process of redeeming this earth. और परमेश्वर इस धरती को छुड़ाने के काम में हमें इस्तेमाल कर रहा है। Right? By dying on the cross, redemption of mankind was secured. और क्रूस पर मरने के द्वारा मानव जाति के बचाव का प्रावधान हो चुका है, But the world and the creation needs to be redeemed. लेकिन ये धरती और उसकी सारी रचना को भी बचाने का काम है। And God is currently in the process of redeeming this world. और परमेश्वर वर्तमान उस चीज के ऊपर काम कर रहा है, And He's doing that by you and by me. और परमेश्वर उस चीज को मुझे, मेरे और आपके द्वारा उस काम Bible को, tells us we are His co-workers on this earth. और वचन कहता है कि इस धरती पर हम परमेश्वर का सहकर्मी हैं, Right? Co-workers in the process of redeeming this world. और जो परमेश्वर के उस सेवा में हम इसलिए सहकर्मी हैं ताकि हम इस धरती को बचा सके। So every work that you are doing, whether it is you are a doctor, you are a lawyer, you are an engineer, you are a business manager, you are a storekeeper, you are a housewife, every work you are doing is given by God. और चाहे आप जो भी काम करो, चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, आप कोई बिजनेस चलाते हो, या आप घर पर बैठे भी घर के काम करते हो, हर चीज परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया Right? है। And God has placed you strategically in that place. और परमेश्वर ने एक योजना के साथ आपको उस काम के लिए रखा है। You know, many times people ask this question, this is such a bad place to work, nothing is working, my boss is horrible, people are not good, why am I in this place? और कई बार हम इस प्रकार का सवाल उठाते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह नहीं है काम करने के लिए, यहाँ पर मेरा बॉस सही नहीं है, यहाँ का वातावरण सही नहीं है, मैं इधर क्यों काम कर रहा हूँ। Right? And the first opportunity that we'll get, we'll probably leave that place and we'll go somewhere else. और जब हमें मौका मिल जाए हम तुरंत उस काम को छोड़कर कहीं और काम करने के लिए चले जाएंगे। But I think it is important if we sometimes ask ourselves this question, being a Christian, why has God placed me in this place? और लेकिन हमें कई बार इस प्रकार का सवाल पूछना जरूरी है कि एक मसीही होने के नाते परमेश्वर ने हमें क्यों इस जगह पर इस काम के लिए रखा है। Maybe God wants to bring order to the chaos in which He has placed you. शायद परमेश्वर जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है वहां पर उन चीजों को सही करने के लिए हमें वहां पर लेकर गया Right? होगा। I've seen so many times in my life that because God has placed me in a place, maybe after so many years there are things happening over there. और मैंने बहुत बार इस प्रकार की चीजों को देखा कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां पर काम के लिए रखा है, उसके कारण वहां की हालत ठीक होने लग रहा I था। don't know my today from tomorrow. और मैं आज
मेरे कल के बारे में मैं आज को देखकर नहीं कह सकता, But God knows my beginning right from the end. और लेकिन परमेश्वर मेरी शुरुआत से लेकर मेरे अंत तक सब कुछ जानता So है। He would know what is going to happen few years down the line. और परमेश्वर जानता है कि कुछ सालों के बाद क्या होगा, And He may have purposely put you in a place of work where there is chaos, where there is problem. और इसलिए परमेश्वर एक योजना के साथ आपको उस बिगड़ी हुई परिस्थिति में काम करने के लिए रखा होगा। And God does not leave you alone over there. और वहाँ पर परमेश्वर आपको अकेले में नहीं छोड़ेगा। He gives you skills, He gives you talents, He gives you strength and endurance to work in that place. और परमेश्वर उस काम को करने के लिए आपको क्षमताएं देगा, आपको धीरज देगा, आपको धैर्य देगा, और उस काम को पूर्ति करने की शक्ति आपको देगा। That is being image bearers of God in that place of chaos. और यही है कि हम परमेश्वर की इमेज को लेकर के उस जगह पर काम कर रहे हैं। Right? God expects you to redeem that place of work by your virtue of being His image और bearers. परमेश्वर चाहता है कि आप उस रीति से काम करें जहां पर आप उस बिगड़ी हुई परिस्थिति को ठीक कर सकें परमेश्वर की इमेज के द्वारा। You are called to cultivate the garden so that it helps in flourishing of the human beings. और परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आपके बगीचे को आप देखरेख कर सके, उसके द्वारा मानव जाति और आगे बढ़ सके। And this brings praise of God's glory. और ये परमेश्वर के नाम को महिमा ले आता Right? So है। we'll just quickly summarize what we have done. और अब तक हमने जो किया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। This was a phrase from famous preacher Rick Warren. He says, "Work becomes worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence." और रिक वॉरेन इस प्रकार कहते हैं कि आपका काम आपका आराधना बन जाता है जब आप अपने काम को परमेश्वर को समर्पण करते हैं और परमेश्वर के लिए उसको परफॉर्म करते हैं, और इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके कार्यस्थल पर है। So work was originally meant to be a source, a means of worshiping God. और काम वास्तव में परमेश्वर की आराधना करने का एक स्रोत है। So we saw today the story of work, हम आज काम की कहानी को हमने देखा, and we saw that this story of work, it does not start with us, but it starts with God. और हमने ये देखा कि ये जो कहानी हमसे शुरू नहीं होता, ये परमेश्वर से शुरू होता And है। God is a worker. परमेश्वर काम करने वाला है, We created in the image of God are also workers. और जो हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं हमें भी काम करना है। Right? We are created with work in mind. और हम काम को मन में रखते हुए परमेश्वर ने हमें बनाया, We are the result or the work product of God. और हम परमेश्वर के काम के परिणाम हैं, We are made in His image. और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। We are to carry on the work which He has given us or which He has started. और जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है उस काम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारे अंदर है, And this is for advancement of human flourishing और इसके And- द्वारा मानव जाति की बढ़ोतरी हो जाए, and the glory of God. और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। So this is basically just the understanding I wanted to create today from Genesis, from the beginning of what God meant when He was talking about और work. यही जो समझ में आप लोगों को आज बताना चाह रहा था, जो शुरुआत से लेकर यानी उत्पत्ति से, सृष्टि के शुरुआत से जो परमेश्वर के द्वारा की गई है। So when the purpose of work is for the benefit of mankind, और जब जो काम का मकसद मानव जाति की फायदे के लिए होता है, when it is to make the world a better place, जब ये धरती को एक अच्छी जगह बनाने के लिए होता है, then that work means salvation. और तब वो काम जो है उद्धार का नाम दिया And जाता that's है। what we are talking about. What God is doing, bringing salvation to this world, He is redeeming the world. और वही हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर इस धरती पे काम के द्वारा उद्धार को लेकर आता है, इस धरती को बचा रहा है। Right? The work for the benefit of mankind or to make a world a better place is from dystopia to utopia. और ये जो प्रक्रिया है जहाँ पर इंसान को बचाने, वो परमेश्वर के ज्ञान में लेकर आना, उसको हम कहते हैं सब बिगड़ी हुई परिस्थिति से अच्छे की ओर लेकर, अच्छी चीजों की ओर लेकर आना। From chaos to everything being perfect. और जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है उसको सिद्धता में बनाना। And this, I think we can understand this process of salvation. I would just like to show you a video with the story of Jadav Payang, who created this particular forest. When we are working with this purpose, when we are working with this objective in mind for betterment of human, flourishing of human and glory of God, things happen. और उसको हम एक वीडियो के द्वारा समझेंगे, जो जादव प्योंग के बारे में हमने पहले बात किया था, उसे हम उस बात को समझेंगे। Right? Every effort that you put in that direction, God blesses that effort. और जो भी मेहनत आप उसके और लगाते हैं, उस मेहनत के ऊपर परमेश्वर आशीष करता है। This video is just for a few minutes. We'll just watch it. We can just switch off the lights and
This video is in Hindi. I just found it on the internet. So maybe, I hope you understand. एक कुटिया में रहते हैं और गायों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जादव पेंग को उनके इस अद्वितीय काम के लिए सन 2012 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। सन 2013 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने उन्हें पुरस्कार दिया और सन 2015 में उन्हें भारत का सबसे उच्च नागरिक का सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। दोस्तों, सफलता की कहानी की जब बात होती है तो अक्सर हम लोग ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने गरीबी में पैदा होने के बावजूद संघर्ष करते हुए अरबों रुपये की संपत्ति अर्जित कर ली, जैसे स्टीव जॉब्स, अंबानी आदि। लेकिन असल में अत्यधिक धन अर्जित कर लेना सफलता का एक रूप है। सफलता का एक रूप यह भी है जो जादव पेंग ने हासिल की है। सोचिए, उनके द्वारा उगाए गए जंगल ने कितनी टन शुद्ध ऑक्सीजन इन 40 सालों में उत्पन्न की है और आगे भविष्य में ये जंगल कितनी ऑक्सीजन हमारी आने वाली पीढ़ियों को उपलब्ध कराएगा। So you see the story of Jadav Peng, where he worked for the betterment of human beings. और यहाँ पर उस कहानी को हम देख सकते हैं जहाँ पर जादव ने मानव जाति की अच्छाई के लिए काम किया है। Right, a paradise created by God, given to man to expand. और जो पैराडाइज, जो स्वर्ग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को दिया उसको बढ़ाने के लिए, So that human beings can flourish. ताकि मानव जाति वहाँ पर और बढ़ सके। And all this not for having a name for yourself, और ये सब अपने लिए एक नाम बनाने के लिए नहीं, and not to have an identity for yourself, और अपने लिए एक पहचान बनाने के लिए नहीं, but for the purpose for which God has given. और ये इसलिए कि जो योजना परमेश्वर ने आपको दिया है, जो मकसद परमेश्वर ने आपको दिया है उसको पूरा करने के BC लिए। Jadav is still living in that forest in a small cottage. और हम देखें कि आज भी ये व्यक्ति उसी जंगल में रहता है। He doesn't have millions of rupees to himself, उनके पास करोड़ों रुपया नहीं है but शायद, he is happy. लेकिन वो आनंदित है, He is satisfied. वो संतुष्ट है, He is content with what he has done और वो उस बात से संतुष्ट है कि जिस बातों को उन्होंने किया है, because he believes that was the purpose of his life. और क्योंकि वो इस बात को विश्वास कर रहा है। Do we इसी- understand the purpose of our life? क्या हम समझ पा रहे हैं हमारे जीवन के मकसद को? Do we understand what has God planned for my life when he has placed me on this क्या earth? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा, वो क्या मकसद के लिए परमेश्वर ने भेजा? Are we cultivating the garden God has given us? क्या हम उस बगीचे को बना रहे हैं जो बगीचे को परमेश्वर ने आपको दिया है? Let's all just stand and we'll just pray and ask God to help us to understand this and to meditate on this and to make it real in our life. I'll request Brother Manova to lead us in the prayer. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें